ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں حیرت سے بیٹھی نازیہ کا منہ تک رہی تھی۔ یہ سب وہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 5 شرائط اس نے مجھ سے کہا کہ جنات کی ملکہ بننے کے لیے 5 شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ان شرائط پر پورا اترتی ہے تو جنات اسے اپنی ملکہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کی بستی میں جا کر رہنے لگتی ہے۔ وہ اسے مالا مال کر دیتے ہیں، اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، نازیہ، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ جنات کی شرائط کیا ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل تم میرے ساتھ جنات کی محفل میں چلنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی وہ 5 شرائط کیا ہیں۔ میں نے اسے ہاں کر دی۔ گھر آ گئی۔ ہاں تو کرنی تھی مگر ڈر گئی تھی کہ نہ جانے وہ 5 شرائط کون سی ہوں گی۔ اگلے دن جب میں اس کے ساتھ اس محفل میں گئی تو ان جنہوں نے مجھے وہ 5 شرائط بتائیں تو انہیں سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا، کیونکہ میرا نام ہادیہ ہے اور میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بچپن سے اپنے ارد گرد صرف غربت ہی دیکھی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی تو میرے ابا اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ اماں بہت ہی زیادہ سخت مزاج تھیں۔ اسے اپنے علاوہ کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں اولاد بوجھ لگتی تھی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اماں اس طرح سے کیوں کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تھا کہ عورتیں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر لیتی تھیں، لیکن ایک میری اماں تھی جو اپنی ہی اولاد سے تنگ تھی۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے اولاد نے ان کی آزادی چھین لی ہے۔ وہ مشکل گھر کے کام کرتی۔ زیادہ وقت ان کا محلے کی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے گزرتا، یا پھر اکثر وہ بازار سے کچھ نہ کچھ خریدنے چلی جاتی تھیں۔ حالانکہ انہیں اس بات کا اچھے سے علم تھا کہ ہمیں پیسوں کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب بہن بھائی مل کر کام کرتے تھے اور تھوڑے بہت پیسے کما لیتے تھے، مگر اماں ہم سے وہ پیسے لے کر بازار میں اڑا دیتی تھیں۔ کبھی کچھ خرید کے لاتی تو کبھی کچھ۔ انہیں بن سنور کے رہنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اسی لیے وہ خود پر خوب پیسہ خرچ کرتی، اور اگر کبھی ان کے پاس کچھ نہ بچتا تو لوگوں سے ادھار لے لیتی، مگر اپنی خواہشات ضرور پوری کرتی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اماں کے اس رویے سے بہت ہی زیادہ تنگ تھی۔ اکثر انہیں سمجھاتی تھی کہ اس طرح سے مت کریں، بمشکل ہمارے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے جمع ہوتے ہیں، آپ وہ بھی اڑا دیتی ہیں۔ مگر اماں آگے سے مجھے 2 تھپڑ مار دیا کرتی اور کہتی، میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری؟ خاموش رہو، آئندہ سے میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح بس ہمیشہ غربت کی چکی میں ہی پستی رہنا۔ اماں کی باتیں سن کر میں چپ ہو کر رہ جاتی تھی۔ مجھے ان کی سوچ پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسی ماں تھی وہ۔ میں قریب میں ہی ایک بنگلے میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے، مگر اتنے ہی کنجوس بھی تھے۔ میں ان کے اتنے بڑے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، مگر بے حد کم تنخواہ ملتی تھی۔ میرا بھائی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ بنگلے میں صفائی وغیرہ کر کے جب میں گھر آتی تھی تو گھر کے سارے کام ویسے کے ویسے پڑے ہوتے تھے۔ میں سارے گھر کا کام کرتی اور کھانا وغیرہ بناتی۔ اماں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کم از کم گھر کا ہی خیال رکھ لیں، مگر یہ سب بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اکثر ہی میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں، اس زندگی سے دور، جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آخر کہاں جاتی؟ میں اکثر اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار ہمارے آس پاس ہی رہتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب اماں کے لالچی پن کی وجہ سے ہم سے دور ہی رہتے تھے۔ بس ایک ماموں تھے جو کبھی کبھی ہمارے گھر چکر لگا دیتے تھے۔ وہ بھی اماں کو بے حد سمجھاتے تھے کہ اپنی اولاد کا دھیان رکھو، ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، کم از کم تم تو ان کا خیال رکھو۔ مگر اماں ان کی باتیں کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھیں۔ بس پورا دن فلمیں اور ڈرامے دیکھتی اور ان جیسا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں کو شدید قسم کا احساس کمتری ہے۔
وہ ہمیشہ خود کا موازنہ امیر لوگوں سے کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ جہاں تم کام کرتی ہو کیا ان کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے؟ میں نے کہا اماں یہ کیسی بات ہے، میرا کسی لڑکے سے کیا واسطہ، میں وہاں کام کرتی ہوں۔ اماں نے کہا تم کیسی لڑکی ہو، کم از کم تم اس لڑکے سے دوستی کر کے اس سے شادی تو کر ہی سکتی ہو اور پھر ایک امیر گھر کی بہو بن سکتی ہو۔ یہ ایک اچھا موقع ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو تو۔ اماں کی اس سوچ پر میں انہیں افسوس سے دیکھ کر رہ گئی کہ بالآخر ان کا لالچی پن ساری حد پار کر چکا تھا۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں سختی سے کہا اس طرح کی کوئی بات سوچنا بھی نہیں، کیونکہ میں وہاں پر کام کرتی ہوں اور ان لوگوں کا بہت ہی احترام بھی کرتی ہوں۔ آپ کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہیں؟ اماں نے کہا لو سنو، تم کیا بول رہی ہو؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، چاہو تو اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر ہی سکتی ہو۔ اس میں کیا غلط ہے کہ تم ایک بنگلے کی مالکن بن جاؤ گی؟ میں نے کہا اماں مجھے اس طرح کی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کرنا۔ اس کے بعد میں نے کئی دن تک اماں سے بات نہیں کی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ میں جانتی تھی کہ ایک بات اگر ان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر وہ اسے پورا کر کے ہی رہتی ہیں، پھر چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن میں شام کے وقت کام سے واپس آ رہی تھی۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی مجھے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی مہمان آ رہے تھے، اس لیے مجھے زیادہ دیر رکنا پڑ گیا تھا۔ واپسی پر شام ہو گئی تھی۔ میں گھر آ ہی رہی تھی کہ راستے میں مجھے محلے کی ایک عورت ملی۔ ویسے تو میں ان سب کے منہ بہت ہی کم لگتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ سب کی سب چغل خور ہیں، بس ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرتی رہتی تھیں۔ مگر مجبوراً مجھے رکنا پڑا، کیونکہ وہ میرے راستے میں آ گئی تھی۔ میں نے احتراماً سلام کیا اور پوچھا کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر تمہیں پتا ہے تمہاری ماں آج کل کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اپنی ماں کے نام پر میں چونک گئی۔ انہوں نے کہا تم بھی کیسی نادان ہو، تمہیں پتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، صاف صاف بتائیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں آج کل ایک امیر مرد کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ گھم گیا۔ میں نے کہا آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو جا کر اپنی ماں سے پوچھ لو۔ یقین تو بہرحال مجھے نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے اماں سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ کم از کم مجھے یقین تھا کہ وہ اتنا نہیں گر سکتی تھیں۔ تبھی میں اس عورت کو وہیں چھوڑ کر سیدھا گھر کی طرف آئی۔ جلدی جلدی میں نے دروازہ بجایا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو بولی کیا ہو گیا، کوئی طوفان آ گیا ہے جو ایسے دروازہ بجا رہی ہو؟ میں نے کہا اماں جلدی اندر چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اس طرح غصے اور پریشانی میں دیکھا تو فوراً سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئیں اور بولی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا اماں میں آپ سے جو کچھ پوچھوں گی مجھے سچ سچ بتائیں گی۔ میرے سخت تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور بولی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ابھی میں واپس آ رہی تھی تو مجھے پڑوس کی عورت ملی اور اس نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہا۔ اماں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کیا کہا ہے اس نے؟ تم کیا ان عورتوں کو نہیں جانتی ہو؟ یہ بھی کسی طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور ایک کی 10 لگاتی ہیں۔ میں نے کہا اماں اگر کوئی بات نہ ہو تو کوئی 10 کیسے لگا سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں گی جو کچھ آپ کے بارے میں محلے میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ مجھے صرف آپ سے سننا ہے اور بالکل سچ سننا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھی اور اماں نے بھی میری سنجیدگی بھانپ لی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کسی آدمی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، کسی امیر آدمی کے ساتھ؟ اماں چند پل مجھے دیکھتے رہیں، پھر بولی تم یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا اماں میں جو آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ کچھ پل کو وہ خاموش رہیں اور پھر بولی ہاں میں گھوم رہی ہوں، تو بتاؤ تم کیا کر لو گی؟ ان کی بات سن کر میرا رہا سہا یقین بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ ان کے اس طرح دھڑلے سے اس بات کو قبول کر لینے پر میں چند لمحے کے لیے بالکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی، کیونکہ مجھے کم از کم ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائیں گی۔ وہ اپنے رتبے کا ہی خیال کر لیتی۔ اب پورا محلہ ان کے بارے میں باتیں کر رہا تھا اور مجھے انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں اماں سے مزید کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔
अम्मा मुझे आवाज़ें देती रह गईं, मगर मैं बाहर नहीं आई। पूरी रात बैठकर मैं सिर्फ और सिर्फ अम्मा के बारे में सोचती रही। मैं जानती थी कि सुबह तक ये बात हमारे रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाएगी और वो सब हमारे दरवाजे पर पहुंचकर तरह तरह की बातें करेंगे, मगर अम्मा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बहन भाइयों में से किसी के कानों में ये बात पड़े और उन्हें कोई भी किसी भी तरह का ताना दे, क्योंकि वो छोटे थे। उन्हें ये सब समझाना बहुत ही मुश्किल था। मगर मेरा दूसरा भाई जो फैक्ट्री में काम करता था वो समझदार था। अगर वो ये सब सुन लेता, क्योंकि जहाँ वो काम करता था वहाँ के बहुत से लोग इसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते थे, वो सब उसे हर वक्त ताने देते और उसका जीना हराम कर देते। गरम खून था, कुछ भी कर सकता था। मगर अम्मा किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रही थी और जो उनका दिल कर रहा था वो वही सब कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले को कैसे हल करूं और अम्मा को किस तरह से समझाऊं कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। उन्हें यह सब ज़ेब नहीं देता, कम से कम वो अपनी औलाद का ही ख्याल कर ले। रात पूरी मेरी सोचों में गुजर गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर दर्द से चकरा रहा था और मेरी आंखें जागने की वजह से सूजी हुई थी। मैं बमुश्किल हिम्मत करके बाहर आई और फिर किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। बहन भाइयों को उठाया और उन्हें नाश्ता दिया और खामोशी से काम पर चली गई। अम्मा ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने आगे से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, वो और उसे ठीक कर लें, मगर वो मज़ीद ज़िद में आ गई। शाम को जब मैं घर वापस आई तो देखा घर पर एक हंगामा खड़ा हुआ था। मैं परेशान हो गई कि क्या हुआ। पहले ही मैं सर दर्द की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रही थी, ऊपर से ये नया मसला। मैं अंदर आई तो देखा कि भाई और अम्मा एक दूसरे से शदीद बहस कर रहे थे। भाई ने किसी से ये बात सुन ली थी और अब वो अम्मा से खड़ा बहस कर रहा था। मैंने दोनों को लड़ते देखा तो मैंने फौरन आकर भाई से कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अम्मा से बात कर लूँगी। मगर वो किसी तरह मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं था। मुझे अम्मा पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, जो अपनी गलती को मानने और उसको ठीक करने की बजाय ढिठाई से खड़ी खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनके इस अमल से और लालच से हम सब की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी और हम सब पर क्या असर पड़ेगा। वो सिर्फ अपना सोच रही थी। उन्हें सिर्फ दौलत से प्यार था, उसके अलावा किसी चीज़ से उन्हें ऐशो इशरत में रहना था और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने बमुश्किल भाई को समझाया और उसे लिए अंदर चली आई। उसने मुझे बताया कि फैक्ट्री में तमाम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे और मेरे लिए वहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और गली मोहल्ले में भी हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी नहीं बैठ सकता हूँ। उसकी बातें ठीक थीं और मैं उसको सिचुएशन में भी समझ रही थी, मगर मैं क्या कर सकती थी, ये सब मेरे हाथ में नहीं था। मैंने उसे कहा कि आइंदा अम्मा से बहस मत करना। ठीक है, वो मेरी बात मानकर चुप हो गया। मैंने एक बार फिर अम्मा से बात करने का फैसला किया। मैंने अम्मा से कहा कि देखें, इन सब का हम पर भी असर पड़ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही हैं, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं कि हमारी माँ ऐसी है। अम्मा ने कहा, तुम्हें लोगों की फ़िक्र है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र होनी चाहिए। मैंने कहा, अम्मा जो आप कर रही हो वो गलत कर रही हैं। आप अपने लालच में ही सब कर रही हैं। आपका लालचीपन आपको तबाह कर देगा। अम्मा ने कहा, तुम मुझे समझाओगी, और एक थप्पड़ मुझे मारा। उनके हाथ उठाने पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी। कम से कम उन्हें इस बात का लिहाज करना चाहिए था। हमें कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, मगर मैं अम्मा की ज़िद के आगे खामोश हो गई। मैंने कहा, अगर आपने ऐसा करना है तो आप यहाँ रहकर ये सब मत करें। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब, तुम मुझे मेरे घर से निकाल रही हो। मैंने कहा, मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे बहन भाइयों के साथ इस तरह का सलूक करें और आपकी वजह से उन सबको ताने सुनने पड़ें। अम्मा ने कहा, तुम सब मुझे बोझ समझते हो और जैसे कि मैं तुम लोगों की कुछ लगती ही नहीं। मैंने कहा, अगर आपने यहाँ रहना है तो आप ये सब छोड़ दें। बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अम्मा ने अपना सामान समेटा और कहा कि मैं तुम्हारे मामू के यहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जानती थी कि मामू के यहाँ वो सिर्फ कुछ ही दिन रह पाएंगी, क्योंकि मामी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी और उनकी हरकतें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाती। मैंने मामू को इस बारे में कुछ नहीं बताया था।
मैं नहीं चाहती थी कि वो शर्मिंदगी उठाएं कि उनकी बहन ये सब कर रही है। हमारे पड़ोस में ही मेरी बचपन की दोस्त नाजिया रहती थी। जब भी मैं परेशान होती उसके पास चली जाती। आज भी मैं उसके पास चली आई। वो थोड़ी अजीबोगरीब थी लेकिन अच्छी लड़की थी। मुझे सुनती थी और समझती थी। दूसरों की तरह मुझे ताने नहीं देती थी। उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम अपनी माँ की वजह से परेशान हो? मैंने कहा जब मैं उसके पास गई तो वो कुछ किताब पढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा ये तुम क्या पढ़ रही हो? उसने कहा ये जिन्नात की किताब है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा तुम भी जिन्नात पर यकीन करती हो? उसने कहा हाँ। क्यों, तुम नहीं करती? मैंने कहा पता नहीं, मैंने बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं जिन्नात के बारे में, मगर मुझे उन सब पर यकीन नहीं आता। उसने कहा कि यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि जिन्नात तो होते हैं, उसकी बात में कोई शक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों पढ़ती हो? उसने कहा कि मेरी जिन्नात से बात करने का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। मुझे उनकी दुनिया के बारे में जानना पसंद है। मैंने कहा तो अब तक तुमने क्या जाना है? उसने कहा हादिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ। उसके पुरस्कार लहजे पर मैं उसके करीब हो गई और मैंने कहा बोलो ना, क्या हुआ? उसने कहा क्या तुम जानती हो जिन्नात की मलका बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा जिन्नात की मलका? उसने कहा हाँ, जिन्नात की मलका। उसने अपने हाथ में थामी किताब मुझे दिखाई और बोली इसमें यह बात लिखी है कि जिन्नात की मलका बनने के लिए 5 शराइत को पूरा करना पड़ता है। मैंने कहा नाजिया तुम पागल हो गई हो क्या? किस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा मैं पागल नहीं हो गई। ये किताब लिखने वाले ने ये सब चीज़ें खुद अपने तजर्बे की बुनियाद पर लिखी। ये किसी की आप बीती है जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से जिन्नात की 5 शराइत पर पूरा उतरने के बाद वो जिन्नात की मलका बन गई। मैंने कहा ये सब झूठी कहानियां हैं, मैं यकीन नहीं करती। उसने कहा यह झूठ नहीं है। वो कुछ पल मेरी तरफ देखती रही। उसने कहा तुम जानती हो तुम जिन्नात की उन 5 शराइत पर पूरा उतरती हो। उसके बाद उसने कहा मैं एक पल को सुन होकर रह गई क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। कोई भी इंसान अगर आपको इस तरह से कहे कि आप जिन्नात की शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आपकी हस्ती एक पल को हिल कर रह जाती है, क्योंकि जिन्नात के नाम पर न जाने हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आ जाती हैं। हमें सिर्फ इस बात का डर रहने लग जाता है कि कहीं वो वाकई में हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं या हमारे इर्द गिर्द कोई जिन मौजूद ना हो। इस तरह की कई बातें हमें डराने लगती हैं और खौफ में मुब्तला कर देती हैं। मुझे भी उस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैंने कहा तुम मुझे डरा रही हो? उसने कहा मैं तुम्हें डरा नहीं रही। तुम जानती हो जिन्नात की 5 शराइत क्या हैं? मैंने कहा क्या? उसने कहा मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगी। कल शाम को तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें लेकर कहीं जाऊंगी और फिर वहीं पर तुम्हें वो 5 शराइत पता चलेंगी। मैंने कहा कहाँ पर लेकर जाओगी? उसने कहा जिन्नात की महफिल में। मैंने कहा नाजिया देखो ये तुम सब क्या कह रही हो, मैं नहीं जानती। तुम मुझे कहीं किसी चीज़ में फंसा मत देना। उसने कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगी? मैंने कहा हाँ ऐसा तो नहीं है, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी। क्योंकि अब मुझे तजस्सुस भी हो रहा था। खौफ तो था मगर तजस्सुस उस पर हावी हो गया था। मैंने उससे वादा कर लिया। फिर उठकर मैं घर आ गई। घर का माहौल वैसे ही कशीदा था। अम्मा घर पर नहीं थी, वैसे भी उनका होना या ना होना एक सा था। कम अज़ कम कुछ दिन सुकून तो था ना, और मुझे ये सुकून बहुत ही ज़्यादा अजीज़ था। मैंने खाना वगैरह बनाया। अभी हम खाना खाने ही लगे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भाई को बोला जाकर देखो कौन आया है। उसने दरवाज़ा खोला तो हमारी चच्ची आई हुई थी। उनको देखकर मेरी सारी भूख ही मर गई, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पर ऊपर ऊपर से हमारी मदद करने आई हैं और अंदर अंदर से चस्के लेने के लिए आई हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था दूसरों के बारे में बातें जानना और फिर पूरे मोहल्ले में उन सब बातों को फैलाना। यही उनका सबसे महबूब मशगला था। पूरे मोहल्ले में वो जो चुगलखोर बीबी के नाम से मशहूर थीं, और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर की बातें वो पूरे मोहल्ले में बताती फिरे। पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो रही थी, मगर अब वो दरवाजे पर खड़ी थी तो मजबूरी थी उन्हें अंदर बुलाना ही था। ना बुलाती तो इस बात पर भी उन्होंने हंगामा कर देना था। वो पूरा खानदान हम पर थू थू करने लग जाता। मैंने भाई को कहा कि उन्हें अंदर लेकर आ जाओ। मैंने उनके लिए खाना डाला। खाना खाते खाते उन्होंने अपना पसंदीदा काम करना शुरू कर दिया।
यानी मुझसे बातें करवाने का काम। बातों बातों में मुझसे कहने लगीं, क्या तुम्हारी माँ के बारे में जो बातें फैल रही हैं वो सच्ची हैं? मैंने घूर कर उन्हें देखा तो वो बोली, देखो मैं यहाँ पर चस्के लेने नहीं आई, बल्कि मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों का ख्याल है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना। बस मैं तुमसे यही पूछने आई थी। मैंने कहा, नहीं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मेरे साफ इनकार पर उन्होंने फिर से मुझसे बातें उगलवाने की कोशिश की। मैंने कहा, चच्ची देखें, जो कुछ आप मुझसे उगलवाना चाह रही हैं उसमें आप कामयाब नहीं होंगी, इसलिए बेहतर है कि आप खाना खाएं और यहाँ से जाएं। उन्होंने कहा, तुम कितनी बदतमीज़ हो, मैं तुमसे बातें निकलवाने नहीं आई, बस तुमसे हमदर्दी कर रही थी। मैंने कहा, मुझे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक के घर की बातें दूसरे घर में फैलाती हैं। मेरे साफ इनकार को सुनकर वो मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। मैं जानती थी वो अब जाकर इस बात का भी बतंगड़ बना लेंगी, मगर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात को जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो मेरे दिमाग में नाजिया की बातें घूमने लगी। न जाने वो 5 शराइत कौन सी होंगी जो जन्नात की मलका बनने के लिए पूरी होती होंगी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठ के नाश्ता वगैरह दिया और काम पर निकल गई। दोपहर तक मैं वापस घर आ गई थी। मैंने भाई से कहा कि तुम इन सब का ख्याल रखो, मैं नाजिया के साथ कहीं जा रही हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैं नाजिया के घर आई, उसको बोला, मैं तैयार हूँ, क्या हम चलें? उसने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, हम दोनों चलते हैं। वो मुझे लिए मेन रोड पर आ गई। वहाँ से हमने रिक्शा लिया। वो रिक्शे वाले को अजीब सा एड्रेस बता रही थी जो कि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, तुम कहाँ पर लेकर जा रही हो मुझे? उसने कहा, मैं बताती हूँ, तुम चलो। वो फिर एक सुनसान और वीरान से इलाके में ले आई। एक पल को मैं डर गई कि कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी, मगर फिर नाजिया ने मुझे हौसला दिया। वहाँ पर एक घर बना हुआ था। वो मुझे साथ लिए वहाँ पर चली गई। अंदर गई तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने कहा कि यहाँ नीचे तहखाने में हमें जाना होगा। मैं उसके साथ तहखाने के जीने उतरकर नीचे आई तो वहाँ अजीब व गरीब लिबास वाले लोग मौजूद थे, एक जैसे सफ़ेद लबादे में मौजूद बहुत सारे लोग। मैंने कहा, नाजिया ये लोग कौन हैं? उसने कहा, ये जिन्नात हैं। मैंने कहा, जिन्नात? उसने कहा, हाँ जिन्नात हैं, और आहिस्ता बोलो, अगर ज़ोर से बोलोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं उसके साथ एक कोने में बैठ गई। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर हर जुमेरात को महफिल होती है और कोई ना कोई इंसान यहाँ पर आता है, और अब ये लोग हमें शराइत बताएंगे, क्योंकि हर जुमेरात को ये एक लड़की को अपने कबीले में ले जाने के लिए चुनते हैं। हो सकता है वो खुशकिस्मत लड़की इस बार तुम हो। उसकी बात पर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? उसने कहा, क्योंकि तुम जिन्नात की शराइत पर पूरा उतरती हो। मैंने कहा, उनकी क्या शराइत हैं? उसने कहा, सुनो, वो लोग अब बताएंगे। वो लोग अजीब सी ज़बान में बात कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे उनकी ज़बान समझ नहीं आ रही। उसने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। उसने कहा, तुम हर कुछ दिन बाद न्याज देती रहती हो ना? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम्हारी आंखें भी सुनहरी हैं? मैंने कहा, हाँ। और तुम्हारे बाल घुटनों तक हैं, और तुम गरीब लड़की हो, मगर तुम अपने गुर्बत का गलत इस्तेमाल नहीं करती, और ना ही तुमने कभी अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल किया है। उसने कहा, ये 3 शराइत तो हैं जिन पर तुम पूरा उतरती हो। मैंने कहा, बाकी कौन सी हैं 2? उसने कहा, बाकी 2 तुम्हारा यतीम होना और पाकीज़ा होना है। मैंने कहा, ये कैसे शराइत हैं? उसने कहा, हाँ, जिन्नात की 5 यही शराइत हैं। जिस लड़की के बाल घुटनों तक होते हैं और आंखें सुनहरी, और जो हर कुछ दिन बाद न्याज देती हो, जो पाकीज़ा भी हो और यतीम भी हो, जिन्नात उसे अपनी मलका बना लेते हैं। मैंने कहा, लेकिन मैं अब यतीम तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं बालिग़ हूँ, और बलूग़त की बात तो कोई यतीम नहीं होता। उसने कहा, लेकिन तुम बचपन में यतीम हो गई थी ना, इसीलिए। मैंने कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसने कहा, देखना, मुझे यकीन है आज जिन्नात तुम्हें ही मलका बनाने के लिए चुनेंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद जिन्नात को महफिल में ऐलान हुआ और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं हैरान हो गई, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मुझसे मेरी ज़बान में बात करना शुरू की और कहा कि लड़की, तुम हमारी शराइत पर पूरा उतरती हो, और अगर तुम इस महफिल में आई हो तो मतलब तुम जिन्नात की मलका बनने के लिए तैयार हो। हम अगले हफ्ते तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाएंगे और तुम हमारी मलका बनोगी।
मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम इस महफिल में आ गई हो तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, अब चली जाओ यहाँ से। मैं वापस गई और नाजिया से कहा कि नाजिया, ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे कहाँ फंसा रही हो? उसने कहा तुम खुशकिस्मत हो जो जन्नात की मलका बन रही हो, वरना लोग पागल होते हैं और कई लोग तो बहुत ही ज्यादा पैसा भी लगा देते हैं जन्नात की मलका बनने के लिए। मैंने कहा मैं ऐसा पागलपन नहीं करना चाहती हूँ। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1 हफ्ते में बहुत ही मुश्किल से गुजारा। मैं किस तरह उन लोगों से बचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वादे के मुताबिक वो वहां पर आ गए और मुझे अपने साथ लेकर चले गए। मैंने उनसे कहा कि मेरे बहन भाइयों का ख्याल कौन रखेगा? उन्होंने कहा कि इन सब का ख्याल हम रखेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं वहां से जन्नात की बस्ती में आई तो देखा कि वो सब लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मगर उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया और कहा कि देखो, हमने तुम्हें अपनी मलका तो चुन ही लिया है, अब तुम चाहकर भी इस फैसले को बदल नहीं सकती हो, मगर हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं कि तुम कुछ अरसा हमारे साथ और कुछ अरसा अपने घर वालों के साथ रहो। मैंने कहा लेकिन ये कैसे मुमकिन है, मैं जन्नात की मलका नहीं बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम बन गई हो और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। इतना कहकर उन्होंने वापस मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे जन्नात मेरे आसपास मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में मैं उनकी मलका थी और वो एक मलका होने के नाते मेरा ध्यान रख रहे थे। मैं कहीं भी बाहर जाती तो वो मेरे साथ साथ चलते। दूसरों को तो नजर नहीं आते थे, मगर मुझे महसूस होते थे। मैंने अपने भाई को ये सब बताया तो उसने कहा कि आप किस चीज़ में फंस गई हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानती, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं वहां पर गई। जन्नात ने मुझे साफ मना कर दिया था कि मैं कहीं काम करने भी नहीं जाऊंगी और जन्नात की मलका होने के नाते मुझे किसी इंसान से शादी करने की भी इजाज़त नहीं है। कुछ दिन बाद अम्मा वापस आ गई। मुझसे कहा कि तुम काम पर क्यों नहीं जाती? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी उनके लालचीपन से तो मैं बहुत ही ज्यादा तंग थी। एक दिन जन्नात ने मुझे बहुत ज्यादा दौलत दी और कहा कि तुम एक मलका हो और तुम्हें मलका की शायान शान ही रहना होगा। मैंने कहा यह बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे एक आलीशान घर लेकर दे दिया। मेरी अम्मा ये सब देखकर परेशान हो गई और बोली, ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैंने कहा आपका तो खुश होना चाहिए ना, आप यही सब चाहती थी। उन्होंने कहा हाँ मैं खुश तो हूं, लेकिन ये जन्नात बीच में कैसे आ गए? मैंने कहा इस बात का जवाब तो नाजिया ही देगी, वही मुझे इस महफिल में लेकर गई थी। अम्मा ने कहा चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इतना मत सोचो, हमें दौलत मिल गई। मैंने कहा अम्मा ये दौलत नहीं, मुझे तो मुसीबत लग रही है। अम्मा ने कहा फिर से तुम यही सब बातें कर रही हो, तुम इंतहाई नाशुक्री लड़की हो। मैं उनको सिर्फ देख कर रह गई। उनके नज़दीक दौलत ही सब कुछ क्यों था? आखिर दिन ब दिन मैं शदीद तकलीफ में आती जा रही थी। जन्नात की मलका बनना कोई आसान नहीं था। मुझे ये दौलत वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, मगर एक पुरसकून जिंदगी चाह रही थी। मगर अब लगता था जैसे सब खत्म हो रहा है। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि तभी मेरे पास एक आहट सी सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक अजीब सा शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें शदीद गुस्से से भरी हुई थीं और लाल हो रही थीं। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जिनजात हूं। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं तुम्हें देखने आया था कि मेरी गैर मौजूदगी में कौन कबीले की मालिक बन गई है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा तुम जिस कबीले की मलका बनी हुई हो उस कबीले का सरदार मैं हूं। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर गया था कि इन लोगों ने दूसरे मलका को चुन लिया। तुम्हें यह कबीला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन्नात के कबीले का सरदार सिर्फ जिन ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। मैंने कहा यह सब मेरी मर्जी से हो नहीं रहा। उसने कहा मुझे नहीं पता, अगर जल्द से जल्द ये सब खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बर्बाद करके रख दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जिन्नात की मलका बनने का अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। इसका ज़रूर कोई ना कोई बुरा नतीजा निकलेगा। अगले दिन मैं नाजिया के पास गई और उससे कहा कि मुझे इन सब से बाहर निकालो। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा वो मेरे घर वालों को दबाहो बर्बाद कर देंगे।
अब तुम कुछ भी करो, तुम मुझे इन सब से बाहर निकालोगी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बाबा जी के पास लेकर जा सकती हूँ जो तुम्हें दम करेंगे। हो सकता है कि तुम इन सब से बाहर आ जाओ। मैंने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, तो तुमने अपनी बेवकूफ़ी में मुझे फंसा दिया। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैंने कहा, जो भी तुमने बिगाड़ा है बस ठीक करो, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरे बहन भाइयों को कोई नुकसान पहुंचाए। उस जिनजादे ने मुझे कुछ दिन ही दिए थे। मुझे जो कुछ करना था सिर्फ उन कुछ ही दिनों में करना था। अगले दिन नाजिया मुझे अपने साथ एक बाबा के पास ले गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की तुम लोगों ने। अगर एक बार उनके चुंगल में फंस जाओ तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। मैंने कहा, अब गलती हो गई है, आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रोज़ नमाज पढ़ो और तिलावत किया करो। तुम इन सबसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाओगी और ख़ुद को हमेशा पाक साफ रखो। जब वो जिनजाद आए तो तुम उससे कभी भी गुस्से से बात मत करो, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उनकी बात पर अमल करना शुरू कर दिया। रोज़ नवाफिल का एहतमाम करने लगी। मैंने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता उस जिनजाद कबीले के जिनों का जोर मुझ पर कम होता जा रहा है। वो जिनजाद दोबारा मेरे पास आया और बोला, तुम कब कबीला छोड़ोगी? मैंने कहा, जल्द छोड़ दूंगी। उसने कहा, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर वो मेरा सबसे छोटे भाई को अपने साथ ले गया। मैं बहुत रोई तड़पी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने जिनों के कबीले से राब्ता किया और उन्हें बताया कि वो मेरे भाई को लेकर चला गया है। अब मुझे मजीद जिन्नात की मलका नहीं बनना। उन्होंने मेरी बात सुनी और खामोश हो गई। मैं घर गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने भाई को हर हाल में बचाना था। इन सब से निकलने के लिए मैं दोबारा से उस बाबा के पास चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी दुआओं और वजीफ़ों में इजाफा कर लो, और उसके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने उनके कहने के मुताबिक यही सब किया, जिससे उनकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी और वो मुझ पर हावी होने के काबिल नहीं रहे। कुछ वक्त बाद उन्होंने मुझे अपने असर से बाहर निकाल दिया और मैं जिन्नात की मलका बनने की बजाय वापस एक आम हादिया बन गई। मैं अपने मोहल्ले में वापस आ गई। वो जिन्नात का घर था। जब मैंने जिन्नात की बस्ती छोड़ी तो मेरे साथ वो भी ख़त्म हो गया। मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं आया। अपने वादे के मुताबिक वो जिनजाद मेरे भाई को मेरे पास छोड़ गया। मुझे अम्मा की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा भाई वापस मिल गया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन मुझे पता चला कि अम्मा जिस अमीर आदमी के साथ घूम फिर रही थी, असल में वो एक ठग था। वो ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाता था और उनसे पैसे वगैरह लूटता था। अम्मा से भी उसने उनके जेवरात और दीगर कीमती अशिया लूट ली थीं और अब अम्मा को अच्छा खासा सबक हासिल हो गया था। मैं मुतमईन थी कि अब उन्हें चैन मिल गया था, अपना सब कुछ लौटाकर। अब वो घर पर बैठी थी और हर वक्त उस आदमी को कोसने देती रहती थी, मगर ये सब उनकी अपनी गलती थी और उसमें उनका कुछ साथ मैं नहीं ही दे सकती थी। शायद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यही समझ आ जाएगी, उनकी सबसे कीमती दौलत उनकी औलाद है। एक दिन हमारे घर एक औरत आई और अम्मा से कहा कि मैं हादिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का अपने घराने का था और शरीफ भी था। मामू ने सारी छानबीन कर ली और अम्मा को इस रिश्ते के लिए मना लिया। मैं खुश थी, मगर मुझे अपने बहन भाइयों की परवाह थी। अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो उनका अब ख्याल रखेंगी। वो अब काफ़ी बदल गई थी। घर में मेरी शादी की तैयारियां होना शुरू हो गईं। मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन कभी कभी मुझे यूं महसूस होता था कि जैसे वो जो इंसान अब मुझे कहीं ना कहीं से घूर रहा है। अक्सर मुझे महसूस होता था कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। उसकी लाल आंखें कभी कभी मुझे अंधेरे में नजर आती थी। शायद उसका खौफ सारी उम्र मेरे साथ ही रहना था, मगर अच्छा था कि उन लोगों से मेरी जान छूट गई, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता। एक दिन नाजिया मेरे पास आई और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वो काफ़ी रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि वो सब मैंने जानबूझकर किया था। मैं बहुत वक्त से जिन्नात की ताकत हासिल करना चाहती थी और उन्हें अपने कब्जे में करना चाहती थी, मगर उसके लिए उनकी शर्त थी कि मैं उनको कोई ऐसी लड़की दूं जो उनकी शराइत पर पूरा उतरे और उसे वो अपने मलका बना सकें, और मुझे में वो सारी शराइत नजर आई थी। तभी मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो मैं उनकी महफिल में लेकर चली गई। बदलों में उन्होंने मुझे अपनी थोड़ी सी ताकत दी, मगर अब मुझे उसकी सज़ा मिल गई है।
मैंने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को अपने कंट्रोल में कर लेने की कोशिश की, मगर मेरे दिन ब दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस ताकत का गलत इस्तेमाल करने का जलाल मुझ पर हावी हो रहा है और मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं हैरान हूँ कि नाजिया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा दिल उसे माफ़ करने को राज़ी नहीं था, मगर मैंने उसे कुछ बुरा भला भी नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने किए की सज़ा मिल रही थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं काफ़ी खुश थी। आज मेरी शादी थी। दुल्हन बनने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी ज़िंदगी, जो बहुत सारी मुश्किलात से भरी थी, अब जाकर पुरसकून हो गई थी। मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी और उसमें माजी में बहुत सारी चीज़ें भुला देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा कभी उन इंसानों के बारे में सोचूं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती थी। अम्मा भी ठीक हो गई थी और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। मेरे बहन भाइयों को उनकी जिम्मेदारी में देकर अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र पर निकल गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।